پاکستان نیوی کے پاس بہت زیادہ سبمرین ہیں، جن میں ہنگر کلاس، حشمت کلاس، ایکس کرافٹ سبمرین موجود ہیں، لیکن ان سب میں اعلیٰ سبمرین اگوسٹا کلاس ہے، جسے پاکستان میں خالد کلاس سبمرین کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری تمام ویڈیو کو پروموٹ کرنے میں میری مدد کی۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم جس چیز پہ ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان کی اگوسٹا سبمرین۔ پاکستان کی اگوسٹا سبمرین ایک بہت بڑی کلاس ہے، جس میں جو 1970 سے چلتی آ رہی ہے اور آج تک اس میں اپ گریڈیشن ہوئی ہے، ہم ان پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے سوویت یونین کی سبمرین ٹائفون پہ اور انڈیا کی سبمرین پر۔ تو چلیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوویت یونین کی سبمرین ہے ایٹامک سبمرین ٹائفون، جو کہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، تو اس کی کیا خصوصیات ہیں، اور اپنی اگسٹا سبمرین کے ساتھ اسے کمپیئر کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہماری سبمرین کیسے۔ رشیا کی جو سبمرین ہے نیوکلیر سبمرین، اس کا نام ٹائفون ہے، وہ 170 میٹر لمبی ہے اور اس میں 4 منزلہ سبمرین ہے، اور اس کی لمبائی کے مطابق اس میں اتنے زیادہ رہائشی آ سکتے، جیسا کہ نیو یارک کے اگر تمام باشندے اس میں لا کر بسا دیے جائے تو وہ مکمل اس میں بس جائیں گے، یہ اتنی بڑی ہے۔ اور اس کا جو وزن ہے 24,000 ٹن اس کا وزن ہے، اور اس میں ہر سال اپ گریڈیشن ہوتی رہتی ہے، اور یہ ایٹ اے ٹائم یعنی ایک وقت میں 20 نیوکلیر میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس میں 20 جو نیوکلیر میزائل ہیں وہ تھرو بیلسٹک میزائل، جیسا کہ پاکستان کے پاس باور بیلسٹک میزائل ہے، اس طرح جو رشیا کے پاس میزائل ہے وہ ان سے فائر کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو سبمرین ہے یہ کسی عام فیول سے نہیں چلتی، یہ ڈیزل سے یا کسی اور فیول سے نہیں چلتی، یہ نیوکلیر فیول سے چلتی ہے۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ اسے کھینچنے کے لیے، اسے چلانے کے لیے عام فیول فیل ہو جاتے ہیں، یہ چلتی ہے نیوکلیر فیول سے۔ نیوکلیر فیول اس میں 235 یورینیم سلاخیں کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی سلاخیں جو ہوتی ہیں وہ خاص طریقے سے لا کر اس میں رکھی جاتی ہیں، تو وہ اس سے چلتی ہے۔ اور اس سبمرین کا ایک اور جو بینیفٹ یہ ہے کہ اسے کوئی بھی اگر یہ کسی جگہ کھڑی جائے اسے کوئی سرنڈر نہیں کرا سکتا، کیونکہ اس کے اندر 20 ایٹم بم رکھے جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس پر فائر کرے گا تو یہ تو لازمی بات ہے تباہ ہوگی، لیکن اس ملک کو، اس جگہ کو مکمل طور پر تباہ کر دے گی، کیونکہ اس کے اندر ہر وقت 20 ایٹم بم تیار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو یہ ایٹامک فیول یعنی نیوکلیر فیول سے چلتی ہے، تو اس میں 2 ایٹمی ریئیکٹر ہاؤس، جنہیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایٹمی ریئیکٹر ہاؤس، جیسے پاکستان میں بھی ہے، جو بجلی پیدا کرتے ہیں، تو یہاں پر انہیں ہم ایٹمی ریئیکٹر پلانٹ کہتے ہیں۔ 2 ایٹمی ریئیکٹر پلانٹ اس میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ان سے بجلی پیدا کرتی ہے، جیسے یہ سبمرین چلتی ہے۔ ان میں یورینیم 235 ڈالا جاتا ہے بطور فیول۔ یہ سبمرین آپ کے اندازے کے مطابق دنیا کی بہت بڑی سبمرین ہے، تو اس کی جو ہے کارکردگی بھی بہت اچھی ہوگی۔ اس میں ایک سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ سبمرین اس میں ویسے جو ڈیزل ہے اور جتنے بھی فیول ہیں انہیں جلانے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ سمندر کے اندر ہوا تو ہوتی نہیں ہے، اس لیے سبمرین کو بار بار سطح سمندر پہ آنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دشمن کے نظر میں آ سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کی سبمرین ہے یہ 3 سال تک سمندر کی ایک گہرائی میں بیٹھ جائے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے باشندوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ وہاں پر بیٹھی رہے 3-4 سال تک، نہ ہی اسے کسی فیول کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کسی اور چیز کی، یہ وہاں پر بیٹھی رہے گی، تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ جو دوسری سبمرین ہے دنیا میں، تو وہ ساری اوپر انہیں آنا پڑتا ہے، ان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ ہوا لینے کے لیے اوپر آتے ہیں، یعنی ایک پائپ باہر نکلا ہوتا ہے سبمرین کا، تو جس کی وجہ سے وہ اندر ہوا بھر لیتے ہیں ٹیوب میں، تو وہ ہوا انجن کو جلانے کے لیے
ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, हमले के लिए, तमाम हमले के लिए ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करती है उसके लिए बहुत लाजमी होती है। उस तरह जब सबमरीन सरफेस पे आती है तो वो पकड़ी जाती है, लेकिन ये सबमरीन पकड़ी नहीं जाती। इसके साथ साथ बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि सबमरीन में जो न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल किए गए हैं वो अगर कोई फायर लीक हो जाए तो ये सबमरीन मुकम्मल तबाह हो जाती है। इस तरह की एक सबमरीन पिछले साल सोवियत यूनियन की एक सबमरीन तबाह भी हुई है, जिसका न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट के अंदर से जो न्यूक्लियर रेडिएशन थी वो लीक हो गई थी। गैमा रेज बहुत ज़्यादा मिक़दार में लीक हुई, जिसकी वजह से बहर मंजमस शुमाली और बहर मंजमस जनूबी में बहुत बड़ा जो बर्फ का ग्लेशियर था वो पिघल गया, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसकी। लेकिन उन्होंने एटम बम जो थे वो किसी तरह ड्यूट्रियम ऑक्साइड यानी D2O आपने सुना होगा जिसे भारी पानी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में वहाँ पर डाला, तो एटम बम को तो फटने से बचा लिया गया, लेकिन पूरी की पूरी सबमरीन और उसका तमाम अमला जो कि उसमें हमले की तादाद 19 से 20 हज़ार तक होती है, तो वो तमाम का तमाम अमला और पूरी सबमरीन तबाह हो गई। न्यूक्लियर रिएक्टर की दूसरी बड़ी खराबी ये है कि ये जब चलता है तो इसकी मदद से, चलने की मदद से बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि शिप, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन में सोनार जो डिवाइस लगाई जाती है वो इसे बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर लेती है। हवा में जो जहाज़ होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए रेडार इस्तेमाल किए जाते हैं, आप जानते हैं उसे, लेकिन जो पानी में डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है उससे हम कहते हैं सोनार। ये साउंड वेव्स होती है और साउंड वेव्स की वजह से कोई भी सबमरीन, कोई भी शिप समंदर में आसानी से ढूंढे जाते हैं, जबकि सबमरीन से बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होती है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, और इसके अलावा रेडिएशन भी वो खारिज करता है, कुछ रेडिएशन खारिज करता है, गैमा रेज नहीं करता, लेकिन अल्फा और बीटा रेज कुछ मिक़दार में खारिज होती है, जिसकी वजह से इसकी डिटेक्शन बड़ी आसानी तरीके से हो सकती है। उसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, बहुत आसानी तरीके से इसकी डिटेक्शन हो सकती है। अगर डिटेक्शन हो जाए तो फिर किसी सबमरीन को पकड़ना, उसे सरफेस पे लाना आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिया की सबमरीन। इंडिया वाले के पास बहुत ज़्यादा सबमरीन है, लेकिन इंडिया वाले और इंडिया के डिफेंस सिस्टम जिस सबमरीन पर फख्र महसूस करते हैं उसका नाम है चाकरा सबमरीन। चाकरा सबमरीन डीजल इंजन है और इसका जो वजन है वो 12,770 टन है, और ये रशिया की मदद से बनाई गई है, और रशिया में ही बनाई गई थी, फिर बाद में इसके हिस्से लाकर इंडिया में इसे जोड़ा गया और इसे आजकल इंडिया वाले अपने डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया की सबमरीन में 10 टॉर्पीडोज हर वक्त तैयार रहते हैं फायर करने के लिए। उसके अलावा शिप या डिस्ट्रॉयर को तोड़ने के लिए भी टॉर्पीडोज 3 आगे से 5 पिछले साइड से हर वक्त फायर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें एक खराब बात यह है कि इसे हर 3 घंटे बाद सरफेस पे आना पड़ता है अपने हवा के टैंक भरने के लिए, जबकि डीजल जो इंजन है उसे चलाने के लिए हवा की जरूरत होती है, जबकि एटॉमिक अपदोजों में ऐसा नहीं होता। इस सबमरीन में ऐसा होता है और इसे ऊपर आना पड़ता है, फिर जब ये ऊपर आ जाती है तो फिर इसके लिए मसला होता है और ये इसके पकड़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इंडिया की यही सबमरीन कुछ महीनों पहले पाकिस्तान में देखी गई थी। जब कमीशन को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी सबमरीन अगोस्टा सबमरीन भेजकर और अपने डिस्ट्रॉयर भेजकर इस सबमरीन को सरेंडर करने का हुक्म दिया। जब ये सरेंडर करने का हुक्म दिया तो ये सबमरीन सरफेस पे आ गई। उसके बाद उनके कैप्टन ने ये कहा कि इस सबमरीन में कोई टेक्निकी खराबी थी जिसकी वजह से ये अपने हदूद से बाहर निकल आई और पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हो गई। तो सबमरीन के तमाम अफराद ने सरेंडर कर दिया, फिर इन्हें वापस बाइज़ तौर पर भेज दिया गया। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सबमरीन अगोस्टा पर। अगोस्टा का काम 1970 में शुरू किया गया और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुआहदे पर का अख्ताम हुआ। तो अगोस्टा सबमरीन फ्रांस की मदद से शुरू की गई और इसका कारखाना कराची में लगाया गया। सबसे पहले अगोस्टा सबमरीन को लाना एक बहुत बड़ा मसला था, तो उसके पार्ट्स बनाए गए फ्रांस में, पार्ट्स को पाकिस्तान में लाया गया और यहाँ पर इसे जोड़कर एक सबमरीन बनाई गई। सबसे पहले अगोस्टा सबमरीन को अगोस्टा 70 सबमरीन कहा जाता है, जिसकी अमले की तादाद 76 है और इसका वजन 1700 टन है और इसमें 21 टॉर्पीडोज पर टाइम फायर करने की सलाहियत है, जिसमें से 10 टॉर्पीडोज फ्रंट से जबकि 11 टॉर्पीडोज बैक साइड से फायर कर सकती है। इसके अलावा इसमें रॉकेट लॉन्चर जो कि डिस्ट्रॉयर को तबाह करने के लिए, शिप को तबाह करने के लिए भी नस्ब किए गए हैं। अगोस्टा का काम
1994 میں ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुआहदे पर हुआ और पाकिस्तान में फ्रांस के इंजीनियर और पाकिस्तानी इंजीनियर ने मिलकर एक नई अगोस्टा को तामीर किया जिसका नाम है अगोस्टा 90 सबमरीन। अगोस्टा 90 सबमरीन जो है ये 350 मीटर समंदर में गोता लगाने की सलाहियत रखती है और ये इंडिया के तमाम सबमरीन से ज़्यादा है, जबकि अगोस्टा 70 सबमरीन जो थी वो 300 मीटर गोता लगाने की सलाहियत रखती है। अगोस्टा 90 सबमरीन 1994 में इसका काम शुरू हुआ और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुआहदे पर हुआ, जबकि फ्रांस के जो इंजीनियर थे उन्होंने पाकिस्तान के इंजीनियर को ट्रेन किया और वो वापस चले गए पीछे पाकिस्तान के इंजीनियर ने इसका काम तामीर किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये डीजल से चलती है और इसमें डीजल के इंजन को हवा देने के लिए सरफेस पे नहीं लाना पड़ता, जब उस हवा के लिए अब्दोस के अंदर ही तमाम के तमाम इंतजामात किए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये इंतजामात कैसे हुए। इसकी वजह से तमाम के जो फ्रांस के पास भी अगोस्टा है उसमें भी ये सिस्टम नहीं है, जबकि पाकिस्तान के इंजीनियर ने ये सिस्टम इसमें प्रोड्यूस किया है। इसमें उन्होंने एयर ड्रम इसमें रखे हैं। एयर ड्रम में लिक्विड एयर डाली जाती है, लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन एक ऐसी ऑक्सीजन होती है जिसे ऑक्सीजन को लिक्विड में तब्दील किया जाता है और ये वॉल्यूम यानी इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इसे फ्यूल को जलाने के लिए यहाँ पर बर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि आम जो सबमरीन है वो 3 से 4 घंटे तक नीचे रह सकती है समंदर की गहराई में, लेकिन ये सबमरीन महीनों हफ्तों के यहाँ तक कि 7 महीने तक समंदर की तह में रह सकती है और एक ही जगह पर बैठी रह सकती है। जबकि और जो इंडिया की तमाम सबमरीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर लें तो 3 से 5 दिन तक वो रह सकती है, जबकि इतना ज़्यादा नहीं रह सकती। जबकि इस अगोस्टा सबमरीन में ये सलाहियत है जो इसे सबसे मुनफरिद बनाती है पूरी दुनिया की सबमरीन में से, कि ये इस तरह से ये एटॉमिक अब्दोस के साथ मुकाबला कर सकती है, यानी ये भी उसकी तरह समंदर की एक जगह में जाकर डेरा लगा सकती है और वहीं से तमाम के तमाम टॉर्पीडोस फायर करने की सलाहियत रखती है। दूसरी इसमें बात यह है कि ये बैलिस्टिक जो भी मिसाइल है पाकिस्तान के पास वो भी फायर करने की सलाहियत रखती है। आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि जो इंडिया की सबमरीन है वो भी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती है, लेकिन इंडिया की जो सबमरीन है वो बिल्कुल आपके जहन में जो बात है वो ठीक है कि वो फायर करने की सलाहियत रखती है, लेकिन उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो उन्हें फायर कर दें। जबकि पाकिस्तान के पास बाबर 3 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि फ्रॉम सी टू ग्राउंड यानी फ्रॉम वाटर टू ग्राउंड, जो कि समंदर से ग्राउंड पर फायर किया जाता है और हाल ही दिनों में इसका कामयाब तजर्बा हुआ है, आपने देखा है। तो ये उस सबमरीन से फायर किया जाता है और इसमें बैक वक्त 12 एटम बम फायर करने की सलाहियत है, जबकि एटॉमिक जो सबमरीन है उसमें 20 एटम बम फायर करने की सलाहियत है। तो आप इससे कंपेरिजन करें कि ये उसके एटॉमिक सबमरीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सस्ती भी है और इसका जो रिपेयरिंग का काम है वो 12 से 13 साल के बाद शुरू होता है, जबकि एटॉमिक जो अब्दोस है जो एटॉमिक सबमरीन है सोवियत यूनियन की उसका काम हर 5 साल बाद शुरू होता है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि ये सबमरीन कितनी तेज़ है। अब मैं आपको इस सबमरीन का एक वाक़या सुनाता हूँ। तो चलिए, एक यूं दिनों की बात है जब कराची के साहिल पर कोई भी पाकिस्तान शिप्स की या अब्दोस सबमरीन की या फिर एयरक्राफ्ट की नकलो हरकत होती थी तो इंडिया को खबर हो जाती थी। तो पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की एजेंसी ने ये पता लगाया कि ये कैसा होता है। तो पता चला कि द्वारका के इलाके में एक बहुत बड़ा रडार नस्ब किया गया है जिसकी मदद से तमाम की तमाम नकलो हरकत पर नजर रखी जाती है। द्वारका इंडिया का इलाका है। तो फिर जो भी नकलो हरकत होती थी इंडिया को सबसे पहले पता चल जाता था। तो फिर ज़रूरी हो गया कि द्वारका के किले में दाखिल होकर यानी इंडिया के इलाके में 500 मील तक के अंदर दाखिल होकर एक जजीरे पर पहुंचना है और उस रडार सिस्टम को पूरा तबाह कर दे। ये कोई इतना आसान काम नहीं था। इसके रास्ते में बहुत ज़्यादा उन्होंने बारूदी सुरंगें भी बिछाई हुई थी, उसके अलावा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयर भी थे, फिर उनकी एक सबमरीन भी जो उसका पैरा करती थी। तो फिर पाकिस्तान की कमीशन ने फैसला किया कि इस पर हमला करके इसे तबाह कर देना चाहिए। एक रोज पाकिस्तान की तमाम सबमरीन्स को और डिस्ट्रॉयर को हुक्म मिला कि सुबह उस किले में जाना है और उसके तमाम रडार को हमने तबाह कर देना है।
اس طرح پاکستان کے جو ڈسٹرائر ہیں طارق، محمود، عالمگیر، غزنوی، یہ جو جتنے بھی تھے انہیں سب کو حکم مل گیا، اور ساتھ میں اگوسٹا سب مرین جو کہ سمندر کی تہہ میں سے جا کر تمام کے تمام جو ڈسٹرائر ہیں انہیں تباہ کرے گی، پھر آگے راستہ بنائے گی۔ تمام عملے نے صدائے تکبیر کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دی۔ اس واقعے کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہمارے تمام ڈسٹرائر اور ہماری سب مرین ان کے علاقے میں پہنچے تو آگے جو صف بندی تھی ان کی ڈسٹرائر تھی تو اس کے اندر سے گزر گئے۔ ان کے ڈسٹرائر نے ان پر حملہ نہیں کیا۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نیچے اگوسٹا سب مرین کو انہوں نے سونر میں انہیں دیکھ لیا تھا۔ اگر وہ حملہ کرتے تو نیچے سے اگوسٹا جو سب مرین ہے وہ ان پر حملہ کر کے ان کے تمام ڈسٹرائر کو تباہ کر دیتی، جبکہ حکم یہ ملا ہوا تھا کہ آپ نے صرف اور صرف جا کر اپنے ریڈار کو تباہ کرنا ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اس لیے اگوسٹا نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، جبکہ ان تمام کے تمام جتنے ڈسٹرائر تھے ہمارے ڈسٹرائر اور سبمرین ان کے درمیان میں سے گزر گئے، لیکن انہوں نے حرکت بالکل بھی نہ کی۔ پھر جا کر وہاں سے ڈسٹرائر تھے تمام ڈسٹرائر نے 50 اپنے بم وہاں پر پھینکے اور اس ریڈار کو مکمل تباہ کر دیا۔ یہاں پر ایک بات آپ نے ضرور زیر غور کرنی ہے کہ یہ انڈیا کے اندر 500 میل گھس کر انہوں نے ایسا کام کیا۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی ایڈوائس ہے تو وہ مجھے ضرور دیں، میں اس کے بعد اسٹڈی کروں گا تو پھر ایک نئی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا۔ تو اگر آپ مجھے کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے تو آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے کمنٹس ضرور کرنا ہے، آپ نے میرے ساتھ کمیونیکیشن ضرور کرنی ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ صحیح ویڈیو بنا رہا ہوں یا پھر کوئی مسٹیک کر رہا ہوں، تو آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔